ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਟਰੰਪ ਨੇ। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करन सने कई मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। एक्स ਤੇ ਪਾਈ पोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ रूस ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। वेनेजुएला ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ 18% ਟੈਰਿਫ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਟਰੁਥ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਹੁਣ 18% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੁੱਲ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 25% ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 25% ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਰਤਨ, ਗਹਿਣੇ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। भारत सरकार की एक असफल और घुटना टेक विदेश नीति का एक नया दौर चल गया है। पहले ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद भारत घुटने टेक देता है, रूस से तेल बंद कर देता है, ईरान से तेल बंद कर देता है, और अब तो अमेरिका की अपनी कॉलोनी जो वेनेजुएला उसने बना लिया है, जहां पे असंवैधानिक तरीके से वहां के राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश ले गया है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। उस वेनेजुएला का तेल अमेरिका अब भारत को बेच रहा है। ये इतनी आत्मसमर्पण वाली विदेश नीति और अर्थनीति कभी नहीं हुई थी हिंदुस्तान की। ये देखना बहुत शर्मनाक है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अपना व्यापार तय कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हमारे जो यूरोप के साथ में मदर ऑफ ऑल डील्स, उससे पूरा विश्व जो है वो अचंभे में था, और उसके साथ ही आज हमें इतनी अच्छी खबर मिली है कि जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं भारत में बने हुए, जो प्रोडक्ट है आत्मनिर्भर भारत के जो है, वोकल फॉर लोकल कह लीजिए या विकसित भारत के लिए जो हम लोगों का विजन है, उसके लिए इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आज जो हमें खबर मिली है कि यूएस में हमारा टैरिफ जो है वो खत्म कर दिया गया है, हार्डली 18% जो मिनिमम में आता है बाकी देशों की अपेक्षा। तो मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी के धैर्य की, उनके संयम की, उनकी डिप्लोमेसी कह लीजिए या उनकी एक सोच जिसे कह सकते हैं, उसकी जितनी हम प्रशंसा करें उतना कम है। क्योंकि वो जितने ही चाहे कह लीजिए कि जितने ही ब्रेव हैं, उसके साथ में उनमें उतना ही संयम और धैर्य है, जो कि एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है।
एंड एज अ वर्ल्ड लीडर, एज इंडियाज लीडर, आई थिंक हम उनकी जितनी प्रश्न उनसे सीखने के लिए भी बहुत है। देखिए, जिस तरह से ये घोषणा हुई है, ये जो भारत की सामरिक आजादी है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके ऊपर ये सीधा सीधा आघात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 2022 जब मैंने अभी जो अपनी किताब का विमोचन किया है वर्ल्ड एड्रिफ्ट, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2022 में भारत को जो उसका ऊर्जा प्रोफाइल था उसको बदलना नहीं चाहिए था। मतलब जो जनवरी फरवरी 2022 में जिस तरह से हम कच्चा तेल और गैस खरीद रहे थे, वो हमको खरीदते रहना चाहिए था। पर सरकार की दलील इस पे ये थी कि अगर हमको कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हमको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज भी तो वो सस्ती मिल रही है, तो आज क्यों आप उसको खरीदने से कतरा रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत $500 बिलियन की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आजादी है उसके ऊपर आघात है, और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। की घटनाओं से जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वाशिंगटन से मालूम हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वाशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप साहब वाशिंगटन डीसी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, इसकी भी जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा, एक महान देश, महान परंपराओं का देश, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं। भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील और अब भारत अमेरिकी ऐतिहासिक व्यापार समझौता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अहम उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारी, चुंबकीय, निर्णायक नेतृत्व ने भारत की आर्थिक उपस्थिति को लगातार मजबूत किया है और कल राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरोसे वाली बात भारत को वैश्विक जगत में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए
मौका दे रही है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील की जो घोषणा हुई है उसमें कई समय से उसका इंतजार था। भारत और अमेरिका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पूरक देश है, जहां पर अमेरिका को लेबर की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की और एक्सपोर्ट्स की जरूरत है। और अमेरिका इंपोर्ट आधारित देश है, क्योंकि उनके पास जो लेबर है उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमारा कॉस्ट कम है। लेकिन दूसरे देशों से भी वो लोग काम कर रहे थे, चाइना वगैरह से पिछले 30-40 सालों से। तो आज जो डील हुआ है उसके कारण जो भारत के निर्यात हो गए, एक्सपोर्ट्स रहेंगे, उनको वहां पे ज्यादा उनको आयाम मिलेंगे, उनको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे दाम दूसरों के हिसाब से कम रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, बहुत सबसे बड़ा डील है भारत के लिए। पिछले सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जनवरी को ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स डिक्लेयर किया था। मेरे हिसाब से ये डील भी उतना ही बड़ा, उतना महत्वपूर्ण है। और दो बड़े बड़े ब्लॉक्स ईयू और यूएस करंटली आज भारत विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता भी है, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। तो उसके साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी, लेबर ओरिएंटेड एक्टिविटीज, आई थिंक। और जब अमेरिका चाइना से दूर जा रहा है, तो चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, हो सकता है कि भारत में अब शुरू हो, क्योंकि भारत को अब टैरिफ से राहत मिली है। हमारे जो पीयर्स है, हमारे जो कंपेरेबल कंट्रीज है, बांग्लादेश वगैरह से भी हमें कम टैरिफ मिला है। हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे करीब 50% का टैरिफ भर रहे थे, आज वो 18% आज से शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसीलिए लोगों में काफी उत्साह है। अचानक हुआ है, लोगों को अंदेशा नहीं था, क्योंकि रविवार को बजट की घोषणा हुई और सोमवार को कल ही ये घोषणा हुई, और वो अचानक हुई, किसी को भी अंदेशा नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि काफी खुशी की लहर एक्सपोर्टर्स में है, बिजनेसमैन में है, कि अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमदनी मिलेंगी भारत में। सर, भविष्य में एनएससी आईपीओ में आपको लगता है कि हायर यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करेंगे? जो अमेरिका से सबसे ज्यादा निवेश भी बाहर होता है, और विश्व के सभी देशों में होता है। पिछले 1 साल से अमेरिका की जो एफपीआईज थी, वो थोड़ा भारत में निवेश करने का प्रयास नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत और अमेरिका एक अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनके बीच में जो ये संधि नहीं हुई थी ट्रेड की, उसी की वजह से ये हो रहा था। तो अब ये कल की जो घोषणा है, उससे लग रहा है कि दोनों देश वापस एक साथ आ चुके हैं, और दोनों में पूरक, एक तरह से एक दूसरे के पूरक है हर चीज में। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी से एफपीआईज को भी एक भरोसा बैठेगा कि दोनों अमेरिका और इंडिया आगे जाके और बेहतरीन साथ में प्रदर्शन कर सकते हैं।